It's time for the lamp lighting ceremony, ladies and gentlemen. मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी उन सभी को जिनके मार्गदर्शन और सहयोग बिना ये शाम अधूरी है. श्री योगी आदित्यनाथ जी, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. Shri Rajiv Chandrasekhar ji, Honorable Union Minister of State for Electronics and Information Technology and Skill Development and Entrepreneurship. Shri Yogendra Upadhyay ji, Honorable Minister of Information Technology, Uttar Pradesh. Shri Ajit Pal Singh ji, Honorable Minister of State for Information Technology, Uttar Pradesh. Shri Durga Shankar Mishra, IAS Chief Secretary, Uttar Pradesh. Dr. Niranjan Hiranandani, Founder and MD, Hiranandani Group. Mr. Darshan Hiranandani, Chairman, Yota Infrastructure. And Mr. Sunil Gupta, Co-Founder and CEO, Yota Infrastructure. Big round of applause, ladies and gentlemen. मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी लैंप लाइटिंग सेरेमनी से इस शाम की शुरुआत करें. A big thank you to the honorable dignitaries for doing the honors. And now, ladies and gentlemen, it is my pleasure to invite Mr. Sunil Gupta, popularly known as the Data Center Man of India, to please come on stage for delivering his welcome address. माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री राजीव चंद्रशेखर जी, officials of the UP government, industry CIOs, IT leaders, our esteemed customers, partners, dignitaries and friends. Thank you all for taking time out of your busy schedule to be here on a Monday. Many of you have traveled from different countries and cities. आपका समय देने के लिए, यहाँ आने के लिए, इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ. It's my absolute honor and privilege to be standing on this platform and addressing this august gathering. Across my career span, having seen India's data center and cloud industry transform from ground zero to where it is standing today, the launch of Yota D1 is a momentous milestone that I feel signifies a major stepping stone for the future success of digital India. Today, India is a true torchbearer of digitalization in the world. Be it e-governance initiatives touching citizens' life digitally more than ever before, be it private enterprises doing everything to serve digital experiences to their customers, be it our thriving startups working on the latest technologies like AI, ML, IoT, robotics, AR, VR, or be it the huge adoption of digital by citizens at the grassroots level. All of this is accelerating at an unprecedented level. With deep penetration of cost-effective smartphones and data plans, expanding broadband penetration, upcoming 5G launch, and with the favorable government policies promoting localization of data, we the citizens are and shall continue to be generating and consuming massive volumes of data. Just like the physical economy needs the underlying supportive infrastructure of roads, railways, airports, hospitals and schools, the digital economy needs the underlying supportive infrastructure of data centers and everything which goes inside those data centers. And given the scale of India's digital potential and the legacy gap which is there in building such infrastructures, India needs massive
more than 15 times more capacity of high quality sustainable data centers than what we have today. And that is where YOTA comes in. That is the vision and dream Darshan and I carried when we started YOTA. And that is the mission which our team of enthusiastic engineers have been relentlessly pursuing ever since we started our journey 3 years back. Storing your data, protecting your data, processing your data, and helping you velocitize it. Our hyperscale data centers let you do it all with great ease and simplicity. When we launched YOTA NM1, our first data center at Navi Mumbai, we set the benchmarks for the industry by making the largest uptime Tier 4 designed and constructed data center in the whole of Asia, which was then awarded the best data center in Asia Pac by Data Cloud Global 2021. With Greater Noida and NCR increasingly becoming a business hub and serving as a gateway to North India's digital economy, the region deserves nothing but the best data center infrastructure. With our Greenfield Greater Noida Data Center Park and the first data center D1, we are taking the first major milestone step to fulfill this need. With 6 data center buildings having 30,000 racks capacity, carrying more than 10 lakh servers, 250 megawatt of total power capacity, 4 fiber paths carrying fiber from all telecom operators, direct connectivity to all hyperscale cloud operators, strong physical security layer, and many more unique features. I, as a proud Indian, can say with authority here that YOTA D1 is not only world class, but is better than or at par with the best data centers as are normally associated with places like US, Europe, or Singapore. Our cloud services, cybersecurity services, disaster recovery services, business continuity services, SAP, Oracle, banking, IBM Cloud, and many more application services are available on an as-a-service model, ensuring that businesses and governments across all levels and across all verticals can leverage YOTA D1 for extending safe and secure digital experiences to millions of their end customers and consumers. Dear Rajiv sir, from this D1 data center, we will soon going to launch our hyperscale YOTA public cloud services based on open source with a multi-cloud capability to burst into other hyperscale cloud operators. With this, we are going to fulfill your dream of having India's own hyperscale public cloud service, where not only the data hosting is localized, but also the core IP of the underlying cloud layer is also owned by Indian citizens. हमारे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, इनोवेशन और सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी के साथ YOTA D1 और यहाँ से प्रदान की जाने वाली सर्विसेज उत्तर प्रदेश और भारत में डिजिटाइजेशन की एक नई लहर पैदा करेंगी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भरता के संदेश को आगे बढ़ाएंगी। हमने उत्तर प्रदेश के अपने YOTA D1 पर एक बहुत ही रोचक वीडियो बनाया है, जिसे विशेष रूप से आज के लिए ही, इस इवेंट के लिए ही तैयार किया गया है। और ख़ास बात यह है, इस वीडियो के लिए हमने अयोध्या की मिट्टी को यूज़ किया है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। जब जब आपके सामने हिंदुस्तान के दिल उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है, तब आपके मन में क्या क्या बातें आती हैं? यमुना तट पर चांद की रोशनी में चमकता हुआ ताजमहल, या बनारस के घाट पर शाम की गंगा आरती, श्री राम की भव्य जन्मभूमि अयोध्या, या शौर्य और बलिदान का स्तंभ झांसी, मथुरा के पेड़े या लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा और नवाबी कबाब। इन सारी खूबसूरत विशेषताओं में एक बहुत बड़ी विशेषता उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश और नेशनल कैपिटल रीजन को आज मिल रही है। ग्रेटर नोएडा में स्थित YOTA हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क।
ये डेटा सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टोर इन इंडिया पॉलिसीज का फल है। नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनियों का मुख्य केंद्र बन गया है, जिस वजह से इस क्षेत्र में अंडरलाइंग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम हो गया है। योटा पूरे भारत में डेटा सेंटर्स की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक है। योटा ने ग्रेटर नोएडा में 20 एकड़ में फैले डेटा सेंटर पार्क के निर्माण की दहाड़ लगाई है, जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, 6 डेटा सेंटर्स बनने जा रहे हैं। सबसे पहले डेटा सेंटर योटा D1 की फाउंडेशन सेरेमनी 29 नवंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, जो आज लॉन्च हो रहा है। योटा D1 की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे एक अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाती है। 3 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये डेटा सेंटर श्रेष्ठ कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ 4 विभिन्न रास्तों से सारे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स की फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध है। योटा D1 में इंटरनेट पियरिंग एक्सचेंजेस और ग्लोबल क्लाउड ऑपरेटर्स की डायरेक्ट फाइबर कनेक्टिविटी मौजूद है, जो इस डेटा सेंटर को एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल कनेक्टिविटी गेटवे बनाती है। यही नहीं, योटा D1 नॉर्थ इंडिया के 5G रेवोल्यूशन का पहला पिलर होगा। यहाँ से नॉर्थ इंडिया के एज डेटा सेंटर्स आपके मनपसंद वीडियो, गेम्स और डेटा को तेजी से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL के नेटवर्क्स पर पहुंचाएंगे। डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इस डेटा सेंटर से पब्लिक क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी और कई अन्य सर्विसेज भी प्राप्त होंगी। 50 मेगावाट के पावर पर चलने वाला ये डेटा सेंटर आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुरक्षित रखा गया है, ताकि हजारों करोड़ों के सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्क उपकरण और उन पर चलने वाली डिजिटल एप्लीकेशंस और कंटेंट हमेशा आपकी सुविधा के लिए चलते रहें। इस डेटा सेंटर में बिजली के 2 मुख्य पावर सोर्स हैं। प्रथम सोर्स 220 kV के रिडंडेंट डुअल एक्सप्रेस फीडर्स जो स्टेट पावर ग्रिड से आते हैं, और द्वितीय सोर्स है 48 घंटों तक डेटा सेंटर की पूरी पावर क्षमता पर चलने वाला बैकअप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। योटा D1 और उसके विभिन्न प्रकार के एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, AI, ML, IoT पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, एनिमेशन और VFX इंडस्ट्री, वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, बैंक, फिनटेक कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ और एजुकेशन इंडस्ट्रीज और केंद्रीय और राष्ट्रीय सरकारों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सफर को जोरों से आगे बढ़ाने की काबिलियत रखता है। D1 डेटा सेंटर में 5000 सर्वर रैक्स की कैपेसिटी है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो 60 लाख हाई डेफिनेशन की फिल्मों का यहाँ आसानी से संग्रह रखा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डायनामिक उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से योटा उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की नींव बनने जा रहा है। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम हैं मेक इन इंडिया और हम भारत को डिजिटली आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया बस एक पहल नहीं है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया एक संकल्प है। देश के हर व्यक्ति को सरकार से जोड़ने का, जिंदगी आसान और तेज बनाने का और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अहम जगह देने का संकल्प है। इसी संकल्प में हाथ बढ़ाते हुए योटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हर नई ऊंचाई को छूने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध और पूरी तरह तैयार है। जय हिंद।
थैंक यू, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस प्रोजेक्ट के द्वारा डिजिटल इंडिया के लिए हम जो ताकत प्रदान कर रहे हैं, हमें एज़ भारतीय, एज़ इंडियंस बहुत ज़्यादा गर्व है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये और अधिक गर्व की बात है कि ये डेटा सेंटर यहाँ इस क्षेत्र में बनाया गया है। मेरी कर्मभूमि मुंबई ज़रूर बन गई है, लेकिन मेरी जन्मभूमि यही क्षेत्र है। I would like to thank you all from the government of Uttar Pradesh, GNIDA officials, all my YOTA colleagues, my partners, and everybody who has put in great efforts in making YOTA D1 operational in record time. I would especially like to thank my wife Sujata and daughter Nandini for their love and support and an understanding of the demands of this phenomena called YOTA, which has completely sneaked into our personal lives 24/7 for the last 3 years. Thank you all once again. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Ladies and gentlemen, a big round of applause for the Data Center Man of India, Mr. Sunil Gupta. Sir, your vision for this facility is indeed inspiring. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्पीकर की तरफ। I now invite a dynamic business leader, Mr. Darshan Hiranandani, Chairman YOTA Infrastructure, to deliver his keynote address. माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री राजीव चंद्रशेखर जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, नंद गोपाल नंदी जी, अजीत पाल जी, माननीय मुख्य सचिव, other dignitaries, friends, thank you for being here today to visit this facility and thank you so much for your presence. आज आने के लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, विशेष रूप में हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के। Most of you have done a tour of the data center and heard from Sunil about its benefits. आप में से बहुतों को ये एहसास नहीं है कि ये उपलब्धि निवेशक और सरकार दोनों के संयुक्त कार्य के बिना संबंध नहीं है। इसे बनाने में बहुत लोग शामिल हैं। सुनील हमारे इंटरनल टीम और आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स को बाद में कवर करेंगे, लेकिन मैं कुछ व्यक्तियों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। लोगों के योगदान के बिना इस तरह की अद्भुत परियोजना का निर्माण नहीं किया जा सकता है। मैं पहले अपने माता पिता को धन्यवाद देकर शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे अखंड समर्थन और आशीर्वाद दिया। जब हम परियोजना पर काम कर रहे हैं और उनके जीवन में अनुपस्थित थे, तो धैर्य रखने और उनके योगदान के लिए मेरी पत्नी नेहा और मेरे बच्चे जोया और जहान को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस परियोजना को पूरा करने वाले लोगों के परिवार के सभी सदस्यों को उनके धैर्य, बलिदान और समझ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। A big thank you to our key partner HDFC, who believed in me, who believed in YOTA, and who believed in Uttar Pradesh and funded this project from day one. Thank you to the entire HDFC team. Rajiv ji, as a super successful technology entrepreneur, now a minister, it has been a moment of pride and privilege to have you come here and to soon hear your views on the roadmap ahead. Sir, I can promise you that we have shown you a data center today that is good as anything, quality-wise, redundancy-wise, energy efficiency-wise, value for money-wise, than in the US or Singapore, if not better. We hope that this visit gives you the confidence that Indian data centers are cutting edge and world-class, and you'll be pushing all the global companies to bring their Indian user data to India soon. I am also excited
that in the next few years, just like the transformation has happened in mobile phone manufacturing, Indian servers and Indian developed IP and open source cloud software and services will form the hardware and software backbone of these data centers. There is a huge focus on the hardware part. We also need a push on the software part. And I'm proud to tell you today that as you've seen this in our hyperscale data center, you'll see it in our hyperscale cloud offering too. In the next few years, you will see Yotta deploy 500 world-class edge data center sites. This will give a real boost to the 5G rollout planned by Government of India. More so, it will be the ideal location for hosting private 5G RAN for enterprise IoTs, as well as world-class content delivery network deployment. Sir, as you know, Digital India is something that Indians have pinned their hopes on. It needs promotion as well as protection. With the new data protection bill, we hope that India, while balancing essential national security needs, takes the path of being a leader in digital privacy, so that India not only becomes a storage and processing center for Indian data, but for the entire region. We also hope that we can create a positive esports ecosystem soon, which with the right checks and balances can be a tremendous value creator. I remain grateful to Amitesh Kumar Sinha ji, Sushil Pal ji, Uma Chauhan ji and Kshitij Kushagra ji in your team for their work with the various state governments and explaining to them the needs and requirements of data centers. Thank you to you and your entire team. The UP data center policy has seen the biggest benefit of double engine Sarkar working really well. योगी जी, एक बिजनेसमैन के रूप में मुझे राजनीतिक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल व्यू रखने या प्रसारित करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में, एक शेयरधारक के रूप में मुझे आपको बताना होगा, मैं आपके काम का फैन हूं। मैं प्रशंसक इसलिए नहीं हूं कि आप ईमानदार हैं, समर्पित हैं और बहुत मेहनती हैं, बल्कि आपके वर्किंग स्टाइल ने यूपी सरकार के अधिकारियों के बेहतरीन गुणों को सामने लाया। लोग राम राज्य की बात करते हैं। मेरा मानना है राम राज्य एक आदर्श सरकार का विचार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्तर के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के बिना जिस तरह से इस परियोजना को अपना मानकर काम किया है, वह किसी अमेजिंग या आश्चर्य से कम नहीं है। इट हैज बीन फैंटास्टिक। योगी जी, उपाध्याय जी और नंदी जी का सहयोग हमेशा तो रहा है, लेकिन इतने अच्छे अधिकारियों ने भी हमारी मदद की है। शुरुआत मयूर महेश्वरी जी, आलोक टंडन जी और आलोक कुमार जी ने मुझे अपने एनसीआर के निवेश को यूपी में लाने के लिए राजी कराया। आलोक जी ने 1 घंटे में मुझे विश्वास दिलाया कि एनसीआर में निवेश करने के लिए यूपी ही एकमात्र जगह है और उन्हें आपके नेतृत्व पर विश्वास था, पूरा भरोसा था कि हमारी परियोजना में यूपी सरकार का पूरा समर्थन रहेगा। हमारा प्रोजेक्ट नरेंद्र भूषण जी की अध्यक्षता में जीएनआईडीए के साथ था। उन्होंने मुझसे कहा, दर्शन, मैं आपसे एक बात का वादा कर सकता हूँ, जीएनआईडीए आपके प्रोजेक्ट के लिए अपना काम करने में आपसे तेज होगा। नरेंद्र जी, आप सबके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी का प्रमोशन हुआ और अरविंद जी ने एक पद संभाला। एक अध्यक्ष के रूप में मैं एक प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह का तनाव लेता हूं, उन्होंने सचिव उद्योग और आईआईडीसी के रूप में लिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूं।
मैं शंकर मिश्रा जी के पास गया था, क्योंकि मुझे डर था कि अधिकारियों का अच्छा हमेशा ट्रांसफर हो जाता है। तो दुर्गा शंकर जी ने मुझे कहा, अरे दर्शन, चिंतित क्यों होते हो, जो अधिकारी है वो भी अच्छा है, जो अधिकारी आएगा वो भी अच्छा है। दुर्गा शंकर जी, आप बिल्कुल सही थे, आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भूषण जी का प्रमोशन हुआ और सुरेंद्र सिंह जी ने पदभार संभाला, उनका भी योगदान बहुत अद्भुत था। और ऋतु महेश्वरी मैडम हमारी लकी मैस्कॉट रही हैं, जो आज हमारा प्रोजेक्ट यहाँ खड़ा है। मैडम, आपके समर्थन और सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा के एसीईओ विश्वरूप में दीपचंद जी, दुल्ली जी, जीएम प्लानिंग, फाइनेंस, ओएसडी और सारी जीएनआईडीए टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पावर ट्रांसको और नोएडा पावर कॉरपोरेशन को भी धन्यवाद। डीएम साहब और लोकल पुलिस के और उनके निरंतर समर्थन के लिए मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ। मैं हमारी परियोजना में समर्थन के लिए यूपी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का भी आभारी हूँ। यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी पर काम करने के लिए यूपीएलसी की टीम और पूर्व एमडी श्री विनीत कुमार जी के सभी डेटा सेंटर खिलाड़ियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अक्षय त्रिपाठी जी, यूपीएलसी के वर्तमान एमडी, उनके समर्थन के लिए और खूब प्रयासों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ऑफिस से एसपी गोयल साहब, संजय प्रसाद जी और अमित सिंह जी का भी सहयोग बहुत शानदार रहा है। योगी जी, इन अधिकारियों को चमकने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। योगी जी, सरकार ही नहीं, आपका प्रभाव प्राइवेट सेक्टर पर भी बहुत बड़ा है। आपके काम की गति को देखते पिछले 30 दिनों में एक बार उद्घाटन की तारीख तय होने के बाद हमारे लोगों ने भी 3 महीने का काम 30 दिन में कर दिया। योगी जी, मैं आपके 10 लाख करोड़ के निवेश प्रतिबद्धता लक्ष्य को देख के बहुत ही एक्साइटेड हूं। आपको और आपकी टीम के काम को देखकर मुझे यकीन है कि ये लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। आपके नेतृत्व में यूपी जो कहता है, यूपी करता है। और आपकी डबल इंजन सरकार की वर्किंग वाकई अद्भुत है। अक्टूबर 2020, ठीक 24 महीने हैं जब हमारी लैंड अलॉटमेंट यहाँ हुई थी। हमने निवेश के लिए 1660 करोड़ का प्रस्ताव रखा था। अद्भुत समर्थन और फैंटास्टिक कस्टमर रिस्पांस देखकर हमने इसे जीबीसी 3 में 9000 करोड़ कर दिया। ये केवल योटा का निवेश था। अब योटा और अपने पार्टनर्स और कस्टमर्स के साथ इन डेटा सेंटरों में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे और हमारी कुल प्रतिबद्धता 39,000 करोड़ हो जाएगी। हम आज से 12 महीने के भीतर 6,500 करोड़ का निवेश पूरा होते हुए देखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके 10 लाख करोड़ के लक्ष्य में से 4% अकेले इस पार्क द्वारा प्राप्त किया जाएगा। यदि राजीव जी डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी को और अधिक बढ़ाते हैं तो ये और भी तेजी से समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूं। थैंक यू सो मच फॉर coming here today, for everybody being here today. I'm very, very grateful. Thank you. I would request Shri Arvind Kumar ji, Ritu ma'am, Akshay Tripathi ji
Sunil Gupta ji to please come up so we can exchange the MOU enhancing our commitment to 39,000 crores, please. A big round of applause for them. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for this amazing investment and Yotta's commitment to Uttar Pradesh. Keep that applause going, ladies and gentlemen. Thank you all for joining us. And now, moving forward, I would request Shri Rajiv Chandrasekhar ji, Honorable Union Minister of State for Electronics and IT and Skill Development and Entrepreneurship, to deliver his keynote address. माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, मेरे संसद में मित्र महेश शर्मा जी, सुरेंद्र नागर जी, दर्शन और निरंजन हीरानंदानी जी और यहाँ पे पधारे हुए सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसा एक हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा में क्रिएट हुआ है और जो हमारे डिजिटल इंडिया का जो एक लक्ष्य है, एक एम्बिशन है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के आगे रखा है, उसको साकार बनाने में इस डेटा सेंटर का बड़ा एक रोल होगा। मैं मानता हूं और मेरा एकदम कन्विक्शन है कि इसका एक बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट रोल होगा और सबको योटा की टीम को भी मैं बधाई देता हूं कि आपने इसको एक रियलिटी बनाया है। डिजिटल इंडिया का जो एक नरेटिव था 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने उसको रखा था और उनके 3 मोटे मोटे लक्ष्य थे। उनका कहना था कि डिजिटल इंडिया यानी कि टेक्नोलॉजी से लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए, यानी कि हमारे गवर्नेंस में, हमारे डेमोक्रेसी में टेक्नोलॉजी के कारण एक सुधार हो। दूसरा उनका लक्ष्य ये था कि डिजिटल इंडिया के कारण हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ हो और डिजिटल इकोनॉमी के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट हों। और तीसरा उनका लक्ष्य ये था कि डिजिटल इंडिया के कारण भारत जो सालों से एक टेक्नोलॉजी कंज्यूमर रहा है, हम टेक्नोलॉजी गिवर बने। और आज 2022 में 6 साल के बाद अगर हम रिपोर्ट कार्ड लेते हैं हमारे डिजिटल इंडिया के प्रोग्रेस में और स्पेसिफिकली हम कोविड के दौरान इस डिजिटल इंडिया का इम्पैक्ट के बारे में सोचें, हम देख सकते हैं कि इस डिजिटल इंडिया के कारण लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी सारे अपने पब्लिक सर्विसेज को डिजिटाइज किया है। हमारे डिजिटल इकॉनमी और हमारी इकॉनमी में काफ़ी तरक्की और हमारे काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है। और पहली बार, और मैं तो सालों से टेक्नोलॉजी के दुनिया से जुड़ा हूँ, पहली बार हम देख रहे हैं कि हम दुनिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और दुनिया को इंस्टेड ऑफ अ टेक्नोलॉजी कंज्यूमर हम टेक्नोलॉजी गिवर बन गए हैं। तो ये डिजिटल इंडिया का एक पुराना ये नैरेटिव होता था कि डिजिटल इंडिया यानी कि बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गिन चुने सिटीज़ में ये सीमित थे और कॉन्सेंट्रेटेड थे। आज 2022 में उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया है
मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में या डेटा सेंटर और क्लाउड के क्षेत्र में या डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में, कि डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश का जो नरेटिव है वो योगी जी की सरकार साकार बना रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि हमने काफ़ी प्रोग्रेस देश और उत्तर प्रदेश दोनों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में किया है। थोड़ा मैं आपको 5 मिनट आपके साथ आने वाले दिनों में हमारे क्या एम्बिशंस है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या लक्ष्य रखे हैं, उसके बारे में आपके साथ शेयर करता हूं। सालों से भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर एक तरह से टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर निर्भर थे। हम दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी यहाँ पर आउटसोर्स करके इन्फोसिस, विप्रो, HCL जैसे कंपनी से हम सॉल्यूशंस क्रिएट करते थे। लेकिन पिछले 5 साल में हमारा डिजिटल इकॉनमी एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल इकॉनमी बना है और हम आज टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी करते हैं, स्टार्टअप्स और इनोवेशन भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और आने वाले सालों में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज योटा के इस एग्जाम्पल को दोहराते हुए हम क्लाउड और कनेक्टिविटी इनोवेशन भी दुनिया के सामने रखेंगे। हमारा एम्बिशन 2014 में अगर हम देखेंगे 92% हमारे देश के जो फ़ोन्स कंज्यूम होते थे इंपोर्ट होते थे, 92%। आज 2022 में 97% ऑफ आवर मोबाइल फ़ोन्स भारत में बनता है। 2014 में हम एक भी फ़ोन एक्सपोर्ट नहीं करते थे और आज नोएडा से, बेंगलोर से, तमिलनाडु से हम 70,000 करोड़ के फ़ोन, एप्पल फ़ोन, सैमसंग फ़ोन दुनिया के कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। ये है बदला हुआ भारत, ये है नया भारत और इस नए भारत में, इस नए उत्तर प्रदेश का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज हम देख रहे हैं इस डेटा सेंटर के द्वारा। मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक मैं यूपी इलेक्शन के टाइम में एक डायलॉग, मेरा थोड़ा मद्रासी हिंदी था, पहली बार मैं हिंदी में भाषण करना मैंने सीखा इलेक्शन के टाइम और मैंने एक डायलॉग मैंने वहाँ पर बोलने की काफ़ी रिपीटिशन की है कि आज अगर आप मानते हैं कि ये डिजिटल इंडिया बहुत ही एक प्रभावशाली मूवमेंट है तो आगे देखते रहिए क्या होता है। ये तो एक ट्रेलर है। जो डिजिटल इकॉनमी के हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और आने वाले सालों में हम टीम इंडिया यानी कि भारत सरकार और डबल इंजन का एक मॉडल, भारत सरकार, यूपी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटका सरकार सब मिलकर इस $1 ट्रिलियन इकॉनमी का जो ऑब्जेक्टिव है देश के लिए और जो 80 लाख करोड़ का ऑब्जेक्टिव है यूपी के लिए, यूपी के इकॉनमी के लिए हम साकार बनाएंगे, साथ मिलकर टीम इंडिया साथ काम करते हुए। आपने मुझे आज यहाँ पर बुलाया, आप सबको बहुत धन्यवाद। आपने पेशेंटली मेरी बात सुने और थोड़ा बहुत मद्रासी हिंदी होगा लेकिन मैं मानता हूँ आप समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। धन्यवाद आपको। नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो समय आ गया है जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। द टाइम हैज़ कम दैट ऑल ऑफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर। मैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी को आमंत्रित करूंगी कि वो योटा D1 डेटा सेंटर का उद्घाटन करें। आप दोनों से अनुरोध है कि आपके सामने रखे हुए बटन को आप एक साथ दबाएं। जोरदार तालियां हो जाए।
जोरदार तालियां हो जाए। Itna hi nahi, our dignitaries today have also laid the foundation for 2 additional data centers, Yotta D2 and Yotta D3. This will be a monumental undertaking for driving India's digital infrastructure to the next level. Let's take a look at the video, please. जी हाँ, जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे आप सब से कुछ शब्द कहें। उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी गुप्ता जी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री सुरेंद्र नागर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल नागर जी, उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक और स्थापना आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के इस पहले डाटा सेंटर के संस्थापक एमडी हीरानंदानी ग्रुप श्री निरंजन हीरानंदानी जी, चेयरमैन एटास श्री दर्शन हीरानंदानी जी, को फाउंडर एंड सीईओ एटा श्री सुनील गुप्ता जी और उनकी टीम के सभी उपस्थित सदस्यगण, हमारे प्रशासन और अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर भारत के इस पहले डाटा सेंटर का आज यहाँ पर अभी कुछ देर पहले लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए डाटा सेंटर इकाई के लोकार्पण और साथ ही 30,000
यानी 39,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं के MOU के इस अवसर पर हीरानंदानी ग्रुप को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है, क्योंकि जब हम लोग डाटा सेंटर की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की तरफ दुनिया का ध्यान बरबस जाता है। अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर 150 करोड़ मोबाइल फ़ोन और लगभग 65 करोड़ इंटरनेट के उपयोगकर्ता वह भारत के हैं। लेकिन अगर हम देखें तो दुनिया का कुल डाटा का लगभग 20% उत्पन्न भारत से होता है, लेकिन हमारे पास इसके स्टोरेज की जो क्षमता थी वह अब तक मात्र 2% थी। इसका मतलब हमारे यहाँ का उपभोगकर्ता भारत का था, मोबाइल फ़ोन का हो, इंटरनेट का हो, लेकिन उसके स्टोरेज के लिए दुनिया के अंदर हमें भूमि तलाशनी पड़ती थी। और आज पहली बार यह अवसर आया है जब उत्तर भारत के अंदर हीरानंदानी ग्रुप ने यह एक डाटा सेंटर देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के न केवल डिजिटल इंडिया के इस संकल्पना को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है, बल्कि इस फील्ड में कोई भारतीय भी निवेश करने की हिम्मत कर सकता है, उसको साकार करता हुआ यह क्षण हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ पर डाटा स्टोरेज के लिए डाटा माइनिंग, डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के लिए अपार अवसर है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो ये गौतम बुद्ध नगर जनपद है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी का जो एक पूरा क्षेत्र है, ये आईटी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र भी है। देश विदेश के अनेक निवेशक यहाँ पर आईटी के क्षेत्र में निवेश किए हैं और निवेश करने में अपनी रुचि भी ले रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार और अथॉरिटीज ने मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दुनिया का सबसे अच्छा मैन पावर भी वो हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यहीं का युवा आईटी के क्षेत्र में दुनिया के अंदर डिजिटल क्रांति के फील्ड में अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। जब उसे अवसर मिलेगा तो उससे दुगनी क्षमता के साथ वह वैसे ही अपने को साबित करेगा जैसे डबल इंजन की सरकार आज भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी क्षमता का उपयोग कर रही है। मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को आगामी 5 वर्ष के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों के सामने किया है वह संभव है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है। हमने उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को कभी टटोलने का और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया। कारण था क्योंकि जब भी कहीं कोई अच्छे प्रगतिशील कदम उठाने की बात उठती थी तो उस पर बैरियर के रूप में अनेक चीजें सामने आती हुई दिखाई देती थी। आज जब मैं यहां पर आया हूं
तो ये तो अच्छा हुआ कि मैं आज से 4 साल पहले से मैंने यहाँ की यात्रा प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि अन्यथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए गौतम बुद्ध नगर एक अभिशिप्त था। ये माना जाता था कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आएगा। तो मैंने कहा भी मैं जा सकता हूँ और मैं जाऊँगा। और मैंने आज से 5 वर्ष पहले यहाँ की यात्रा प्रारंभ की थी, तब मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न उठे थे। हमारे विपक्ष के मित्रों ने भी उस समय कहा था कि अब आपकी कुर्सी खतरे में है। तो मैंने कहा देखो, कुर्सी किसी के साथ नहीं जाती है, जो कल जानी हो आज चली जाए, लेकिन मैं जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने जिन लोगों के लिए संकल्प लिया था, उन लोगों ने डबल इंजन की सरकार को फिर से वापस लाने के उस संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा। और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। आज हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देनी हो या फिर आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन करके उन्हें ईज ऑफ लिविंग का लाभ देना हो, स्वाभाविक रूप से उस पर तकनीक उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान तकनीक ने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। खासतौर पर कोरोना प्रबंधन के दौरान देश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को बखूबी होते हुए देखा है। कैसे देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चले, कैसे हमने तकनीक का उपयोग करते हुए कोरोना स्क्रीनिंग का कार्य घर घर जाकर के किया, कैसे शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। तकनीक नहीं होती तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हम वर्चुअल आईसीयू का संचालन प्रदेश में या देश के अंदर नहीं कर पाते। तकनीक नहीं होती तो डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी एक साथ करोड़ों अन्नदाता किसानों तक, करोड़ों निराश्रित परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दे पाते। लेकिन क्योंकि एक विजनरी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के साथ ही डिजिटल इंडिया की जो बात की थी, उसके साथ प्रत्येक नागरिक को जोड़ने की जो कार्रवाई प्रारंभ की थी, उसका परिणाम था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रहते हुए भी बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का कार्य भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत करके अपनी क्षमता को दुनिया के सामने साबित किया है। और मुझे लगता है इसमें तकनीक का बहुत बड़ा रोल था। आज अगर हमें आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करना है तो आत्मनिर्भरता अपने परंपरागत उत्पाद के साथ साथ तकनीक को भी हम अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे तो स्वाभाविक रूप से यह उसे और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में उसका योगदान होगा। और तकनीक की भूमिका किसी भी स्तर पर नकारी नहीं जा सकती है। आज के इस अवसर पर जब उत्तर भारत का यह पहला ऐसा डाटा सेंटर है जो किसी भारतीय के द्वारा बनाया गया है और वह भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में बनाया गया है, मैं इसके लिए हीरानंदानी ग्रुप को अपनी पूरी टीम की ओर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए, भारत सरकार के सहयोग के लिए श्री अश्विनी वैष्णव जी और श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने इस पूरे अभियान को हमारी टीम के साथ जुड़ करके टीम इंडिया के प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य जिस त्वरित गति से आगे बढ़ाया है,
वो अत्यंत सराहनीय रहा है। मैं इसके लिए भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं हीरानंदानी ग्रुप को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश इस फील्ड में जो अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो नई रैंकिंग प्राप्त की है, इसमें आपने देखा होगा कि जमीन के आवंटन में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जिस त्वरित गति से काम किया था, अन्य जो कार्रवाई जिस समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ी है, ये नए उत्तर प्रदेश की एक नई स्थिति आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में वे बेहतर परिवर्तन को भी देखा होगा। कभी यहाँ पर तमाम माफिया गिरोह हावी हो चुके थे, निवेशक यहाँ से भागते थे और यहाँ पर कोई ना कोई माफिया प्रदेश के अलग अलग जनपद में हावी होकर के उन्होंने पूरे प्रदेश की व्यवस्था को और शासन की व्यवस्था को बंधक सा बना दिया था। आज प्रदेश में कोई माफिया गिरोह नहीं, कोई संगठित अपराध प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता है और प्रदेश के प्रत्येक निवेशक को सुरक्षा प्रदान करना, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, यह सरकार की प्रतिबद्धता है और अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति सरकार की है, सरकार उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा करके अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा किया गया निवेश पूरी तरह सुरक्षित होगा, उसे आगे बढ़ाने में सरकार हर प्रकार से मदद करेगी। मुझे बताते हुए भी प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश अब डाटा सेंटर का एक नया हब बनने जा रहा है। हम इसको देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 250 मेगावाट डाटा सेंटर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का जो लक्ष्य हम लोगों ने अपनी डाटा सेंटर पॉलिसी में तय किया था, उसके तहत हम इस लक्ष्य को बहुत शीघ्र पूरा करने की स्थिति में आ चुके हैं। क्योंकि राज्य सरकार की डाटा सेंटर नीति जब प्रारंभ हुई थी तब देश की डाटा सेंटर की क्षमता मात्र 400 मेगावाट थी। इसके सापेक्ष आगामी 5 वर्ष अर्थात 2026 तक 250 मेगावाट क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य हम लोगों ने यहाँ पर अर्जित की एक लक्ष्य तय किया था। लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की हमारी जो डाटा सेंटर की जो पॉलिसी है, इसने अपने पहले ही वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए के संपूर्ण निवेश लक्ष्य को अर्जित किया है। भारत का दुनिया भर के प्रमुख डाटा सेंटर निवेशकों से 600 मेगावाट से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं और उनके व्यवस्थित क्रियान्वयन की कार्रवाई भी आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ कर दी गई है। मैं आज के इस अवसर पर डाटा सेंटर के लिए जो हम लोगों ने अपनी पॉलिसी तय की है, इसमें हम लोगों ने डाटा सेंटर पार्क तथा छोटी डाटा सेंटर इकाइयों दोनों के लिए ही वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की है। डाटा सेंटर उद्योग के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक बुनियादी आवश्यकता है। हम यहाँ पर देख रहे थे, जब सुनील जी हमें बता रहे थे यहाँ पे कि अनवरत बिजली चाहिए और अनवरत बिजली की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोगों ने अपनी पॉलिसी में काफ़ी परिवर्तन किए। खासतौर पर एक यहाँ पर हम लोगों ने सुविधा दी है कि प्रदेश में इस सेक्टर में निवेश करने वाले कोई भी निवेशक को खुले बाजार से प्रतिस्पर्धी भाव के दरों पर विद्युत क्रय करने, दोहरी ग्रिड द्वारा विद्युत आपूर्ति करने, ओपन एक्सेस और डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, विद्युत शुल्क और ट्रांसमिशन और बिलिंग शुल्क आदि सभी जितना भी इस सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था हम लोगों ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत किया है। और डाटा सेंटर के जो जितने भी हमारे निवेशक हैं उनको तमाम प्रकार की इंसेंटिव भी देने की कार्रवाई राज्य सरकार ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत किया है और उसका परिणाम है
कि आज हीरानंदानी समूह के साथ ही अडानी, सीफी, वेब वर्क्स, एसटीटी और जापान की कंपनी एनटीटी ने भी अपने निवेश के प्रस्ताव हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिन प्रस्तावों को हम अपना यहाँ प्रदेश के अंदर मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिए हैं। आज मैं इस बात के लिए हीरानंदानी समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना ये बेहतरीन डाटा सेंटर तो एनसीआर को और उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत को दिया ही है, साथ साथ हमें 39,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों के साथ भी हमारे साथ एमओयू किया है, जो प्रदेश के अंदर आगामी 5 वर्ष के अंदर इनके द्वारा निवेश किया जाएगा। और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उनके द्वारा जो एमओयू किया गया है, यह डाटा सेंटर की इस इकाई के उद्घाटन और 2 नए सेंटर के शिलान्यास के साथ ही उसी त्वरित गति से क्रियान्वित हो। राज्य सरकार का भरपूर सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। उनके निवेश को पूरी तरह सुरक्षित रखने में राज्य सरकार उन्हें हर प्रकार का सपोर्ट करेगा। मैं एक बार फिर से हीरानंदानी समूह को इस डाटा सेंटर के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश में उनकी अब पहली इकाई है, इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश में और उनकी पूरी टीम का उत्तर प्रदेश में हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री महोदय, आपके शब्दों ने यहाँ सभी को प्रेरित किया, सबका प्रोत्साहन बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। And now, ladies and gentlemen, may I invite builder extraordinaire, founder and MD Hiranandani Group, Dr. Niranjan Hiranandani, to say a few words to all of you. आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी, डिग्नेटरीज एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज बड़े नम्रता और बड़े गर्व के साथ खड़ा हूँ। मैं और योटा टीम माननीय योगी जी के आभारी हैं। योगी जी यहाँ पधारे हैं और हमारे आशीर्वाद देकर सम्मानित किए हैं। उनका आभार प्रकट करने के लिए शब्द बहुत ही कम पड़ रहे हैं। क्या बताऊं, आज हमने जो हासिल किया है वो सब आपके सभी के समर्थन और सहायता, प्यार और स्नेह का नतीजा है। उससे मैं इतना अभिभूत हूँ, हर्षित हूँ, आनंदित हूँ कि मुझे लगता है शायद मुझे कुछ चूक हो जाए। इसीलिए अगर आज के कार्यक्रम में कोई भूल हुई हो तो महोदय मुझे माफ़ करने की कृपा करें। योगी जी, मैं आपको शुभ समाचार देना चाहता हूँ। हीरानंदानी ग्रुप ने बनाया हुआ यह 7वां डेटा सेंटर है। हमारा ग्रुप डेटा सेंटर बिल्डिंग्स 2012 से बना रहे हैं। भारत के 800 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी में से हम 200 मेगावाट के अधिक का निर्माण किया है अब तक। लेकिन महत्व की बात यह है कि हमारे ग्रुप के इतिहास में आइडिया से लेकर डिलीवरी तक का सबसे तेज निवेश ये नोएडा का डेटा सेंटर है। इसका पूरा श्रेय जाता है आपको और आपके सरकार को। आपके समर्थन और योटा के प्रति आपकी सरकार की सहायता के लिए मैं आभारी हूँ। माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरे दिल से शुक्रिया। राजीव चंद्रशेखर जी यहाँ पधारने के लिए, हमें डिजिटल इंडिया के अपना विजन दिखाने के लिए धन्यवाद महोदय।
मैं आपसे वादा करता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के रूप में हम सरकार के दिखाए हुए मार्ग चलने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, तन से, मन से, धन से और लगन से। Rajiv Chandrasekhar ji, thank you for you being here today. Your inspirational vision of Prime Minister Modi and you yourself, vision to the IT community. We appreciate this roadmap and will continue to focus on domestic digital excellence. We shall and will be the best in the entire world. That is a promise that I give it to you, sir. उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रियों का विशेष धन्यवाद। योगेंद्र उपाध्याय जी, गोपाल नंदी जी, अजित पाल सिंह जी, जिन्होंने निर्णय किया है कि उनके मंत्रालय के कारोबार करने सर्वोच्च होगा। जो मुख्यमंत्री जी ने आज कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ मौजूद हैं संसद के असीम धन्यवाद, पर हमारे स्पेशल थैंक्स जो है वो दुर्गा शंकर मिश्रा जी के लिए। मुख्यमंत्री, आप मुख्य सचिव हैं, लेकिन हमारा परिचय आपके साथ 5-6 साल पहले, जहाँ प्रधानमंत्री की जो ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग फॉर ऑल, 1.1 करोड़ हाउसिंग आपके लीडरशिप में रहा है और हम आपके साथ में थे नरोटके के द्वारा। उसके लिए बहुत धन्यवाद। और अभी उसी ताकत से, उसी स्ट्रेंथ से आप यहाँ यूपी के सरकार, और जो आपको बताया और दर्शन ने ज़्यादा कहा कि कैसे लीडरशिप रहा है आपके पूरे ऑफिसर्स से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Congratulations and please keep it up. I also want to specially thank, in addition to what Darshan had said, Arvind Kumar ji, Infrastructure and Industrial Development Commissioner, Ritu Maheshwari ji, locally at CEO Greater Noida, Akshay Tripathi ji, MD ULC. I can go on, but this is really something which I want to say, that all the officers of the state government have been par excellence, and really what Yogi ji mentioned over there, I can tell you and assure you, all the other people who have come over here, that what he says he does. वो जो काम बोलते हैं वो करते हैं, इसमें कोई दो बात और दो मत नहीं है। So I am really happy here today. I want to thank all our friends and customers who are here today, who have come from far distances to make this program a great success. I want to thank our development partners, our IT partners, our media friends, and all the people here who are behind the scene for being here today. My congratulations to Darshan, CEO Sunil Gupta, and the entire YOTA team who have done this enormous project in recorded time. Darshan, you are a worthy son. Thank you very much for keeping my name up and taking it to great heights. योगी जी, मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार बुलेट ट्रेन सरकार है। अब मैं इसका नाम बदलकर रॉकेट सरकार करने जा रहा हूँ। जो कोई भी यूपी से निवेश करेगा, उसकी सफलता का ग्राफ रॉकेट की तरह उठेगा। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद। Dr. Hiranandani, thank you so much for your words of wisdom. Ladies and gentlemen, it was indeed our pleasure to host such visionaries who shared their views on how to build for the best of UP and the best of India. एक बार फिर हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं।
यहाँ आकर आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. Ladies and gentlemen, we are now going to present tokens of thanks to all our partners and the people behind the Yotta D1 Data Center. But first, we'll take a short break to set things up for the presentation. We'll be back in just a few moments with the presentation ceremony.